how to build it. So today we are lucky to attend this. So today we are lucky to attend this program and will be learning skills on how to build a CV. Now we would like to invite Dr. Ritesh Bhardwaj sir, convener Skill Development Cell, Shamlal College Evening, to encourage us with his words. Thank you, sir. Uh, Thank you so much, Priyanka. Thank you, Keshav. And thank you so much, Amit sir, to be here with us once again. देखिए आज हमारे साथ बहुत सारे students, some of the students are new in this program because last time we were facing some technical problem in times in Google Meet. That's why I'm organizing this program again in Google Meet so that everybody can join it easily. और वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा. अमित पोदार सर हम लोगों की तरह जैसे आप लोग आज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं. अमित सर हैज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, University of Delhi, and 2 days before I was one news was flashing in the news that Andhra Pradesh government is trying to associate Venkateshwar College with Andhra state government and try to disassociate Venkateshwar College from University of Delhi. Let's see what happen in future. Amit sir, I don't know, I can't say anything else right now, but आंध्र प्रदेश सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से वेंकटेश्वर कॉलेज को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ जोड़ा जाए और दिल्ली विश्वविद्यालय से इसको स्वायत्तता देकर के एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की जाए. अमित सर ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो कि he did his MBA from Indian Institute of Planning and Management, worked for a US-based multinational company, Primex Telecom, for 2 years, and then he shifted towards education industry. Headed a Pune-based company, Bullseye, for 3.5 years, and looked after academic and marketing. He joined Time Institute, which is well-known name in the area of preparation and other competitive exams. He joined Time Institute in 2006, and being a convener of Skill Development Cell, I would like to convey my special thanks to Time Institute to guide our students in different areas. Being a political science background, I'm not been able to address each and everything, especially in terms of professional expertise in today's corporate world. So Time Institute is the best place and best faculty members who can guide us about different things, which is a requirement of today's environment. In 2006, he has working as a knowledge expert and have grown to a senior regional head position. He has been a good experience, more than 15 plus years of exploring the corporate world. Once again, thank you so much, Amit. And the students were very impressive and very happy to listen you last time. And once again, I hope they will get some expert knowledge from you. And one more thing, Amit, most of the students who are not able to join our program because of the limit of 100 in Google Meet, they are requesting us to share your video with all of them. And definitely I will do that at earliest as possible. Thank you so much. And once again, at our Shamlal College evening. Thank you, Amit. Thank you. It's a pleasure. Okay, so let me begin the session now. So in the last class, we discussed a lot about different ways of portraying yourself. अपने आप को कैसे किसी के सामने हम portray कर सकते हैं in a good light, I would say. Because जो important ये है कि हमें अपना जो best foot है वही forward दिखाना होता है. The best things हमारे अंदर है, that is very crucial. So this session would be a continuation kind of, I would say, wherein we would discuss about how to put the best in you on a sheet of paper. That how do you put the best whatever is in you? एक पेज पर हम कैसे उसको डालेंगे और क्या क्या डालना चाहिए, that is an important thing. जैसे आपके प्रिंसिपल सर ने और मिस्टर रमेश सर और रितेश सर भी बोल रहे थे कि जो रिज्यूमे है बहुत क्रूशियल होता है, बिकॉज आपका एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है उनके पास जो आपको रिक्रूट करने वाले हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं. सो इन अ वे ये एक मिरर है, जैसे somebody अभी बोला किसी ने कि ये एक मिरर जैसा है कि आपको उस रिज्यूमे के थ्रू देखना चाहते हैं वो लोग, सो दैट नेक्स्ट स्टेप के लिए वो कॉल करें. तो इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशियल है कि कैसे मुझे एक मीटिंग मिल जाए, बस कैसे मुझे वो रिज्यूमे देखकर लोग
एक बार बुला तो ले, उसके बाद तो मैं कन्विंस कर दूंगा उनको कि आई एम गुड इनफ फॉर दिस जॉब, या फिर आई एम गुड इनफ फॉर दिस कॉलेज, कहीं मैं हायर एजुकेशन के लिए जाऊं, या आई अप्लाई टू सम गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी और एनीवेयर। आज की डेट में रिज्यूमे मांगते ही हैं इंटरव्यू के पहले हर जगह पर, और बहुत बार आप इंटरव्यू के टाइम पर रिज्यूमे ले जाते हो, और बहुत बार क्या होता है हम भेज देते हैं, उनको रिज्यूमे भेज देते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, मोर और लेस पीपल आर अवेयर ऑफ दिस, दैट यू नीड टू सेंड अ रिज्यूमे बिफोर एनी मीटिंग, नॉर्मली दिस हैपेंस, राइट। आगे जाकर कभी आप मान लो अपना बिजनेस कर रहे हो एंड यू वांट टू मीट सम इन्वेस्टर्स, कुछ इन्वेस्टर से मिलना चाहते हो, आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, राइट। अभी अगर आप कोई इन्वेस्टर से मिलना चाह रहे हो और इन्वेस्टर आप में इंटरेस्ट कैसे शो करेगा, आपके फोन से तो वो नहीं समझेगा, आपने फोन किया वो उठाएगा नहीं फोन, इफ इन केस बोलेगा चलो अपने बारे में मुझे लिखकर भेजो। इसका मतलब वो इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट तभी करेगा जब उसको आपकी प्रोफाइल में कुछ नजर आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हर जगह पर, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे मैं कॉलेज हायर एजुकेशन एमबीए करना हो, या जीआरई जीमैट के थ्रू मुझे कहीं अप्लाई करना हो, या मैं बैंक का एग्जाम दूं, या एसएससी का एग्जाम में, चलो बहुत जगह पर इंटरव्यू नहीं होता, बट बहुत जगह पर ऑफिसर की जो रैंक है वहां इंटरव्यू कराते हैं वो लोग, या यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करो, तो आप समझ लो एक तरह से 90% जगहों पर ये मैंडेटरी है आपके लिए। और इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि फर्स्ट सेकेंड ईयर से वो अपना पता है विजिटिंग कार्ड बनवा लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ इट? मतलब फर्स्ट ईयर में बच्चा भी आया सेकेंड ईयर में और उसने अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लिया। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा ही सीरियस है अपने करियर को लेकर और वो कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग को लेकर। आई टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग बहुत जरूरी है आज की डेट में। अभी शायद उतना आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आपके जो दोस्त अभी बने हैं ना, ये लोग आपके जिंदगी भर काम आएंगे। दैट इज द होल पॉइंट। हमारे जो 10, 12 ग्रेजुएशन के दोस्त हमेशा काम आते हैं, और ये आपको आगे जाकर कोई आईटी फर्म में है, कोई किसी एफएमसीजी में काम कर रहा है, somebody is working in कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, या किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया, तो बात यह है कि बाद में जाकर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होती है लोगों में आपस में। तो यही कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात वही टीम वर्क की है, टीम की तरह काम करके, दैट्स हाउ इट इज। अकेले तो कितना कर पाओगे अकेले, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है। अब बात वही है कि आगे जाकर मुझे और नेटवर्किंग अगर करनी है लोगों से, नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स डेवलप करना है, तो वो मुझे याद रखेंगे ना। कैसे याद रखेंगे बताओ मुझे? हाउ विल दे रिमेंबर मी? मैं गया किसी से मिलकर आया किसी कॉलेज में, या कहीं पर कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए गया, या फिर तुम्हारे कॉलेज से कोई आया कहीं पर कोई इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सरशिप के लिए और आके बात करके चला गया। ऑन द अदर हैंड कोई दूसरा ग्रुप आया तुम्हारे कॉलेज से, वो आके बात करके गया और अपना एक कार्ड छोड़ गया, छोटा सा एक कार्ड, विजिटिंग कार्ड, उसमें नाम लिखा था, उसकी सोसाइटी का नाम लिखा था, और वो करता क्या, उसमें उसका प्रोफाइल, एक लाइन आधी लाइन, और उसका फोन नंबर। अभी वो कार्ड, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। सी कितनी छोटी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है, बट बात यह है कि दैट्स वेयर यू डेवलप कॉन्टैक्ट एंड दैट शोज योर प्रोफेशनलिज्म। तो वही है, छोटा सा कार्ड हो या फिर एक कवर लेटर होता है। बहुत बार आप जब रिज्यूमे भेजते हो किसी को, तो हो सकता है उनके पास उतना टाइम नहीं है, दे मे नॉट हैव दैट मच टाइम। अब अगर उनके पास उतना टाइम है नहीं कि वो आपसे बात करें या फिर आपके रिज्यूमे को देखें, तो यू नीड टू मेक देम ओपन योर रिज्यूमे। हाउ डू यू डू दैट? बाय एन इंप्रेसिव कवर लेटर। एक अच्छा सा कवर लेटर, 3-4 लाइनें लिखोगे उसमें, which would tell something about you and something about the place you are applying. My dear students, please keep in mind, हम कॉन्टैक्ट्स तभी बढ़ा सकते हैं जब हम दूसरे को आगे रखेंगे। बहुत सारे बिजनेस डील्स पता है कैसे होते हैं? नाम, अगर 2 कंपनी मर्ज कर रही है और तुम्हें पता है कि वो दूसरी वाली कंपनी मेरे से बड़ी कंपनी है, तो जब भी वो मर्ज करेंगी और तुम उनके पास ये डील लेकर जाओगे कि मुझे आपकी कंपनी से मर्ज करना है, और जो भी नाम उस कंपनी का होगा जो मर्ज करने के बाद, उस नाम में पहले आपका नाम होगा, आई टेल यू वो डील आप जरूर क्रैक कर लो। क्योंकि आज की डेट में नेम इज सो इंपॉर्टेंट, नेम इज सो क्रूशियल, राइट? सो इस तरह से हम डील करते हैं, दूसरों को थोड़ा आगे रख के, राइट? अगेन आई टेल यू, इट्स अबाउट टीम वर्क। आपने कुछ काम किया, मान लो अपनी सोसाइटी में, आप टीम लीडर थे और 5 लोग और थे आपके टीम में,
while addressing others, मान लो अपन प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हो या और किसी से बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा इनकी वजह से। यू कैन ऑलवेज टेल कि ये लोग जो थे मेरे टीम मेंबर, ये दे हैव डन अ लॉट, उनकी तारीफ करो। अच्छा लीडर वैसा ही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, रादर देन सेइंग कि नहीं मैंने करा। ठीक है, हो सकता है आपने करा हो, जरूर आपकी ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन रही हो, लेकिन अगर आप उनको आगे करोगे, दैट्स हाउ इट इज। इफ यू हर्ड, आई थिंक वो मूवी देखी होगी शायद तुमने, मिशन मंगल, उसमें यू नो द साइंटिस्ट, जब फेलियर हुई तो साइंटिस्ट ने खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि हाँ मेरी वजह से ये फेल हो गया मिशन, और जब सक्सेसफुल हुई उसकी टीम, उन्होंने सारा क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया, बोला इनकी वजह से सक्सेसफुल हुआ। सी द काइंड ऑफ लीडरशिप। इनकी फेलियर हुई तो उसने मुख खुद बोला कि मेरी वजह से फेल हुए, जबकि सबकी वजह से हुए होंगे, और जब सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने सबको आगे कर दिया, पूरी टीम को, ये लोग हैं, इन्होंने किया, खुद पीछे हो गए। Now that's leadership, उसको लीडरशिप बोलते हैं, राइट? सो सी यू नीड टू थिंक ऑन ऑल दीज लाइंस कि आपने क्या क्या अच्छा किया है अभी तक, बिकॉज कोई भी सीवी, कोई भी रिज्यूमे बनाने से पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना कि मैंने क्या क्या किया है अभी तक। बचपन से 10th 8th 7 8 तक तो ज्यादा चीजें हम करते नहीं है, या फिर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बिकॉज सी 7 8 तक की चीजें बहुत छोटे क्लास की चीजें। नॉर्मली हम लोग जब रिज्यूमे पुट करते हैं तो क्लास 8 के बाद, आफ्टर क्लास 8th 8 9 10th 11 12th, उसके बाद क्या क्या आपने किया वो थोड़ा रिसेंट हो जाता है, उसके पहले थोड़ा पुराना हो जाता है। बट इवन बिफोर क्लास 8th अगर कोई ऐसी वैल्यू आपको कहीं से मिली हो, वैल्यू एथिक्स, ऐसी कोई चीज, या कोई बहुत अच्छा कुछ नेशनल ओलंपियाड या ऐसा समथिंग ऐसा कुछ किया हो, सो यू कैन डेफिनेटली पुट दैट ऑल्सो इन योर सीवी, वो भी हम पुट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली समझ लो, एक तरह से एक लिमिट अगर मैं बनाऊं तो मैं बोलूंगा क्लास 8 के बाद वाली चीज रीसेंट हो जाती है, और अगर आपकी क्लास 8 से पहले की कुछ चीज लिखना चाहते हो तो वो एज सच बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी हम उसको लिखेंगे एक रिज्यूमे, राइट? सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड, आई वुड से। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर कि सीवी के पहले कवर लेटर जरूर लिखेंगे। जब तक हम कवर लेटर में अपना और सामने वाले की थोड़ी सी कनेक्शन नहीं दिखाएंगे तो हो सकता है दैट पर्सन मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन माय रिज्यूमे, वो मेरे रिज्यूमे को देखे भी ना। सो प्लीज बी केयरफुल, कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हो तो 2-3 लाइन अपने बारे में और 1 लाइन उस कंपनी के बारे में, कि वो कंपनी में आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे, ये बहुत जरूरी होगा। इनफैक्ट मैंने बोला नाम, उनका नाम अगर वो देखेंगे अपने कवर लेटर में, थोड़ी देर तो जरूर रुकेंगे, अरे ये तो जानता है मेरे बारे में। ये साइकोलॉजिकल है, बहुत छोटी बात है बट बहुत साइकोलॉजिकल है, आप ट्राई करके देखना। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, हम 100 जगह सीवी भेजते हैं, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आता। आई टेल यू, वी सेंड सीवीज to 100 places and nobody replies us. Why? Because I randomly send the CV everywhere without showing any connect. तो क्या फायदा हुआ? मेहनत तो बहुत करी बट कुछ फायदा नहीं हुआ। So see, we need to work in the right direction. All of you, mind you guys, you need to work in the right direction. सिर्फ मेहनत से आजकल नहीं ज्यादा मिलता है, कुछ बता रहा हूं। मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये दोनों मिलेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हो सकता है कोई 10 घंटे खाली हार्ड वर्क करे और स्मार्ट वर्क ना करे, और कोई 4 घंटे हार्ड वर्क करे और 2 घंटे स्मार्ट वर्क करे। आई टेल यू, कम पढ़ के भी उसके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे एग्जाम में, बहुत बार ऐसा देखा गया। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट शुड बी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो दैट्स वेयर आपकी कवर लेटर देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। और कवर लेटर में सिर्फ अपनी पूरी रिज्यूमे का एक जिस्ट होगा, थोड़ा अपना स्ट्रेंथ, थोड़ा अचीवमेंट, और 1-2 लाइन उस प्रोफाइल के बारे में जहां आप अप्लाई करना चाहते हो, बस उनकी कंपनी के बारे में 3-4 लाइनें क्रिस्प टू द पॉइंट। जैसे न्यूज़पेपर आप अगर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के बड़े आर्टिकल के बीच में एक छोटा बॉक्स होता है, देखा आपने? छोटा बॉक्स होता है, पूरे उस बड़े आर्टिकल का एक जिस्ट उस बॉक्स में होता है। यानी कि अगर मेरा इंटरेस्ट उस आर्टिकल में आया, या फिर अगर मैंने सोचा कि मैं ये आर्टिकल पढ़ूंगा, तो प्रॉब्लम मैं सबसे पहले उस बॉक्स में देखूंगा क्या है, किस बारे में, 2-3 पॉइंट देखूंगा। If it is of my interest, then I'll read the article. Otherwise, I'll not read the article. मैं नहीं पढ़ूंगा आर्टिकल। तो वही बात होती है, इंटरेस्ट ग्रैब कैसे करें। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू। तो एक कवर लेटर जरूरी है। I'll just share a presentation now, all of you. I think तुम्हें 2-3 पॉइंट तो नोट कर लिया होगा about the cover letter, about networking वाला चीज, वो पॉइंट, right? और how to make a connect with wherever you're applying.
So these 2-3 things were important things. Okay, let me share the presentation. I hope you're able to see the slides. Are you guys? Slide देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. जी सर। ठीक है। So resume writing पर है, और अब जैसे मैंने आपको थोड़ा एक ब्रीफ बताया कि resume writing का जो ऑब्जेक्टिव होता है जॉब लेना नहीं होता है, ये होता है कि जॉब के लिए बुलावा आ जाए, बस होता है ना वैसा कुछ। सो विच मीन्स जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिज्यूमे का या फिर सीवी का, करिकुलम विटे कि टू बी शॉर्टलिस्टेड, भाई मुझे बुलाओ एक बार, दैट इज द, प्लीज ये ध्यान रखोगे। सिर्फ सीवी देखकर कोई जॉब तो नहीं दे सकता, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि सीवी में तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। They will have to ascertain that whatever I've written in the CV, is that right or not? Please understand. ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी सीवी में जो मेरे अंदर है ही नहीं चलेगा। I tell you my dear students, honesty is still the best policy. Please understand. और अगर if in case I don't have many things to show, from today I'll start working on developing and building my CV. सीवी बनाने से पहले मैं उस चीज पे तो वर्क कर लूं जो मैं सीवी में लिखने वाला हूं। प्लीज ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के पास बहुत टाइम है, थर्ड ईयर वालों के पास थोड़ा टाइम है, बट स्टिल आई थिंक बहुत टाइम, क्योंकि if I have not participated in so many events, if I have not organized so many events, for example, if I don't have so many extracurricular activities, I don't have hobbies, मैं इन चीजों पे वर्क करूंगा फिर अगले 2-3 महीने। I'll do some online courses. I'll work on some participation. कोई अगर कंपटीशन नहीं हुआ है अभी तक मेरे कॉलेज में, वो कंपटीशन में करा दूंगा ऑनलाइन, इफ इन केस पॉसिबल। कोई डिबेट कंपटीशन, एक्सटेम्पररी कंपटीशन करा देंगे ऑनलाइन, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट मेरे पास लिखने के लिए तो होगा कि आई कंडक्टेड और वी कंडक्टेड एक्सटेम्पररी कंपटीशन इंटर कॉलेज। चाहे कितने भी पार्टिसिपेशन है, क्या फर्क पड़ता है, आपने कंडक्ट करा है ना। प्लीज टेक इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव लो ना भाई। 5 कॉलेज को मेल लिख दो कि आपके यहाँ से मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए, फिर ये चीज आप अपने उसमें रिज्यूमे में डाल देना बाद में कि आपने ऐसा करा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सो रिज्यूमे बनाने से पहले आई ट्राई टू बिल्ड माय रिज्यूमे, ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड टू बिल्ड अ रिज्यूमे, मैं क्या पता वीकेंड्स पे जाके कहीं पर एनजीओ में थोड़े दिन काम कर लूं, कोई गलत बात नहीं, इट्स गुड थिंग। वहां से कुछ सर्टिफिकेट शायद मिल जाए, और सर्टिफिकेट नाम में मिले कोई बात भी नहीं, मैं लिख दूंगा उसको रिज्यूमे में, क्यों मैंने किया, झूठ नहीं बोल रहा मैं। सो ऑनेस्टी के साथ हम कुछ कोर्सेज कर लेंगे ऑनलाइन जो मेरे गोल से अलाइन हो रहा है, तो ये सब चीजें करके हम उसको रिज्यूमे में बाद में पुट करेंगे। बट पहले आई वुड से मुझे रिज्यूमे बिल्डिंग पे ही वर्क करना पड़ेगा, यानी कि खुद पे वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आई हैव गुड थिंग्स टू राइट इन द रिज्यूमे। नहीं तो फिर क्या बचेगा मेरे पास रिज्यूमे लिखने के लिए कि मैं 10th यहां से करी, 12th वहां से, ग्रेजुएशन कहां से, और मैंने फिर एक इंटर्नशिप करी अगर करी तो, और मेरी हॉबीज ये है, बस खत्म रिज्यूमे। फिर तो यार कुछ अच्छा नहीं लगा ज्यादा, राइट। ऑन द अदर हैंड दूसरे किसी का रिज्यूमे आया उनके पास है, उसमें बहुत सारी चीजें थी, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, 3 इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, 2 ऑनलाइन कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलर 5 एक्टिविटीज। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है उसके पास, भाई कंपटीशन तो है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, और आप आपस में ही तो compete कर रहे हो। तो प्लीज ट्राई टू showcase your USP, showcase your activities, participations, etc. in a CV, so that at least somebody gets interested in you. बात तो वही है ना भाई, इंटरेस्टेड कैसे, पहले मीटिंग में इंटरेस्ट कैसे आए तुम्हारे ऊपर। बहुत बार हम दोस्तों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो अपने बारे में अच्छी चीजें बताते हैं, तो वो सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाता है ना, वैसा ही कुछ। ठीक है, और ये ध्यान रखो कि आप रिज्यूमे में जो भी लिखोगे उसको देखने का जो टाइम है उनके पास बहुत कम होता है। कितने ही रिज्यूमे हमारे पास आते हैं, बट देखने का टाइम जो होता है बहुत कम होता है लोगों के पास। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आपने हाईलाइट करा है इंपॉर्टेंट थिंग्स, अंडरलाइन करी है कुछ चीजें, बोल्ड में लिखा है, बिकॉज यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन, एंड दैट विल बी वेरी क्रूशियल। आई होप दैट मेक्स सम सेंस ऑल ऑफ यू, राइट। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट आई वुड से।
अब देखो रिज्यूमे का मतलब है इट्स सेलिंग टूल, ये ध्यान रखो प्लीज। जैसे मैंने बोला, जैसे आपके प्रिंसिपल सर ने बोला, आपके रितेश सर ने बोला, मिरर जैसा है, और ये एक सेलिंग टूल है आपके लिए। टीवी पर ऐड आता है, वॉशिंग पाउडर निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वैसा करके, तो वैसा ही है कुछ। तो तुम्हारी क्या कोई पंच लाइन है क्या? अगर है तो लिख दो भाई। अगर हम सेलिंग टूल, तो मेरी पंच लाइन होगी। पंच लाइन मतलब क्या होगा यहाँ पर? फिलोसफी। What's the philosophy of your life? What do you believe in? Do you believe in hard work? Do you believe in honesty? Do you believe in, that wherever there is will, there is way? What do you believe in? Do you believe in all is good, all is God? What do you believe in? Kind of. ऐसी बिलीफ अपना पंचलाइन बताओ, राइट? तो वही है, रिज्यूमे एक सेलिंग टूल है अपनी कैंडिडेचर को सामने लाने का। आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस को ही समझ लो आगे आप उनके सामने लिखने वाले हो। और सबके अंदर एक जो सुपर पावर है, सुपरमैन या वंडर वुमन या और कौन कौन से हैं भाई, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, शक्तिमान, जो भी है, तुम्हारी सुपर पावर क्या है वो भी उसमें लिखना, राइट? कुछ अलग वाली मत लिख देना, नॉर्मल वाली, राइट, जो है हमारे। सो विच मीन्स इट इज अबाउट योर यूनिकनेस। ऑल ऑफ अस आर यूनिक, सो वी हैव टू पुट आवर यूनिकनेस इन आवर रिज्यूमे। अब देखो, नॉर्मली लोग रिज्यूमे, करिकुलम विटे, ये सब नाम से जानते हैं, सीवी, और एक चीज होती है बायोडेटा। अब जो बायोडेटा है ना, ये थोड़ा सा ना ओल्ड फैशन तुम बोल सकते हो। तो याद रखना प्लीज ऑल ऑफ यू, हम लोग बायोडेटा को नहीं आगे देंगे लोगों को, हम लोग सीवी या रिज्यूमे, ये दोनों एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है। यूएस और कनाडा में रिज्यूमे बोलते हैं और यूके में वो सीवी बोलते हैं, एक ही बात है। हमें इसके अंदर क्या पुट करना है? करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट के डिटेल्स, क्या स्किल्स है आपके अंदर, कहाँ इंटर्नशिप्स करी, कोई वर्कशॉप्स करी क्या क्वालिटीज है आपके अंदर, देखो ये सारे। तो मोर और लेस आप वो सी चीजें पास्ट से प्रेजेंट या प्रेजेंट टू पास्ट, बट जो भी है इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज व्हाट वी डू, राइट? आपकी टैलेंट को कवर करना है, रादर दैन कि आपने सीवी में लिख दिया भाई आपकी बर्थ रेट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मैरिड हो नहीं हो, क्या रिलीजन है, क्या रेस है। यार ये सब नहीं जरूरत। रेसिडेंस कहाँ है, कौन से गली नंबर, कौन से फ्लोर पे रहते हो, कौन से स्ट्रीट नंबर, अरे वो घर पे थोड़ी आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए। सो अगेन वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट? हमें बायोडेटा नहीं प्रेजेंट करना है, हमारी मेजर चीजें यहाँ है, यहाँ ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, राइट? सो रादर कि हम ट्रिवियल छोटी चीजें नहीं ज्यादा लिखेंगे, बी केयरफुल अबाउट इट, राइट? सो नॉर्मली एक पेज का रिज्यूमे होगा या मैक्सिमम, चलो 2 पेजेस का भी हो सकता है अगर मेरे पास आई हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट। ध्यान रहे उनका अटेंशन स्पैन से 15 से 30 सेकंड का ही होता है। एक रिज्यूमे को 15 से 30 सेकंड ही देंगे वो शुरू में, उतनी देर में ही आपको इंपैक्ट क्रिएट करना है। बी वेरी केयरफुल बात, बहुत कम टाइम स्पैन है, उतनी देर में ही आपको वहां पर एक इंप्रेशन क्रिएट करना है। बी वेरी केयरफुल बात, राइट? कोशिश करनी है कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग गलत ना हो। जितने ही आप अटेंटिव होकर अच्छे तरीके से उनको ये प्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, रादर देन कि मेरी 3 गलतियां अगर रिज्यूमे में ही निकल गई तो वो मेरे बारे में शायद थोड़ा सा गलत इंप्रेशन आ जाएगा उनकी। तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से मैं सही ढंग से लिखूं, स्पेलिंग चेक कर लूं, गूगल पे आजकल सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, ग्रामर भी देख लूं, ये सब देखना जरूरी है। एक आधा गलती हो जाए वो अलग बात है, बट नॉर्मली मैं नहीं करना चाहूंगा। और अगर मैं रिज्यूमे प्रिंट आउट निकाल रहा हूं तो इट शुड बी ऑन अ गुड पेपर क्वालिटी। ऐसा नहीं कि मैंने उसको एकदम पतली शीट पे निकाल दी और ऐसे मोड़ के रख लिया, नहीं, प्लीज। एवरीथिंग इज प्रेजेंटेशन टुडे, सो हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उसको। पेपर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रिंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखो ये सारी वो चीजें हैं जो आपको देखने से पहले उनके पास पहुंच रही है। प्लीज, अगर आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो कहीं पर या कहीं हार्ड कॉपी ले जा रहे हो तो आपको देखने से पहले ये चीजें उन तक पहुंच रही है। तो ऑफकोर्स आई एम श्योर आप समझते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा फिर इसका मतलब, राइट? सो बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज माइन्यूट डिटेल्स, राइट? ना, डू नॉट राइट एवरीथिंग इन डिटेल। कोई पूरी कहानी नहीं सुना देनी कि पूरी 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 कहानी सुना दी आपने, उनका टाइम नहीं है इतना। बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, be positive and highlight the most important impressive points first. So be careful about it.
मान लो आप एक फोल्डर में सारे सर्टिफिकेट्स रख के जाते हो और आपने रैंडम तरीके से रख दिया है, एंड देन यू गिव इट टू देम इंटरव्यू के टाइम, तो वो क्या पता 2 ही 3 पेज देखकर आपको वापस कर दे, उनको पता भी नहीं चलेगा आपकी सारी क्वालिटीज अच्छी वाली क्या है, क्योंकि वो फोल्डर के पीछे आपने रखा था। कोई भी मौका आप नहीं छोड़ सकते, प्लीज अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। मौका नहीं छोड़ सकते, अपॉर्चुनिटीज हर बार दरवाजा नहीं खटखटाती, लेकिन जब खटखटाए उस नॉक को सुनना है और वहां पर अपना बेस्ट करना है। इसीलिए मैं कोई गलती अपनी तरफ से तो नहीं करूंगा, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करने की कोशिश करूंगा मैं। तो मैं उस फोल्डर में सबसे जरूरी बात मैं पहले लिखूंगा, उसके कम ऐसे करके ऐसे अरेंजमेंट करूंगा मैं सर्टिफिकेट्स का। सेम इज ट्रू फॉर रिज्यूमे। क्या पता वो नीचे की चीजें ना देखे रिज्यूमे में, तो मैं ऊपर अच्छी वाली इंपॉर्टेंट चीजें लिखूंगा। कितनी सिंपल सी बात है लॉजिकली, राइट? सो दैट मीन्स, सो बी केयरफुल अबाउट दैट काइंड। अच्छा, अब देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है रिज्यूमे का कि मेरा कोई ऑर्डर होना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट क्या चीजें जरूरी है? तुम्हारी ऑब्जेक्टिव, तुम्हारी एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स। चलो मैं यहां पर इंटर्नशिप कर देता हूं बिकॉज आप लोग सब फ्रेशर्स हो। अभी मैं 1-2 रिज्यूमे दिखाऊंगा आपको। इंटर्नशिप्स, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपने अवार्ड मिला कुछ, स्किल सेट्स, एट्रीब्यूट्स। एक और पॉइंट में लिखूंगा यहां पर, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने क्या क्या पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हेड करा है, कोई वॉलंटरी वर्क करा है क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर। ये चीजें आप मिस नहीं कर सकते अपने रिज्यूमे में, देख लो। बाकी नाम, एड्रेस, ये तो छोटी बात है, वो तो कहीं भी ऊपर लिख दो, राइट? करियर ऑब्जेक्टिव 1 to 2 लाइन्स, दैट्स इट। कि मुझे करना क्या है जिंदगी में, कोई पूछे एम्बिशन क्या है, क्या करना है, किस तरफ जाना है, तो प्रॉब्ली मैं करियर ऑब्जेक्टिव वहां पर लिख दूंगा, दैट लाइक टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर एंड सर्व द सोसाइटी एंड माय कंट्री और हेल्प द कंपनी ग्रो एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा कुछ लिखूंगा मैं 2 लाइन का, बस, ज्यादा लंबा, राइट? बी केयरफुल अबाउट। और एक चीज याद रखना, अगर मैंने फाइनेंस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो थोड़ा सा मैं फाइनेंस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव लिखूंगा। अगर मुझे मार्केटिंग जॉब के लिए अप्लाई तो वैसा, मतलब थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को बेस्ड ऑन द कंपनी आई एम अप्लाइंग। ये ध्यान रखना प्लीज। इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन। विल कस्टमाइज, जिस तरह से कंपनी उस तरह से हम अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करें। सो एक मिनट, लेट मी शो यू। 1-2 पहले मैं थोड़ा रिज्यूमे दिखाता हूं आपको ऐसे लोगों का जो बड़े पॉपुलर है, बड़े लोग, उसके बाद में छोटे लोगों का दिखाऊंगा। पहले बड़े लोग फिर छोटे लोग। सो लेट्स सी, लास्ट में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। इतना क्रिएटिव तरीके से लोगों ने रिज्यूमे बनाया, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं आपको। हाँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं अभी, आई डोंट नो। आप ये एक मिनट, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को बढ़ाता हूं, अगर आप देख पाओ तो। Okay. So, can you see it? पढ़ पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Elon Musk, I mean, आज की डेट में बहुत पैसा है इनके पास, Yes, sir. right? बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सन है। तो इन्होंने अपना एक फिलोसफी देखो ऊपर लिखा हुआ है, लिखा है अपनी फोटो में देखो, हंसता हुआ चेहरा डाल दिया इन्होंने, ठीक है? मतलब अपनी फोटो छोटी सी डाल सकते हैं, प्रोफेशनल वाली डाल सकते हैं, ठीक है? सो ठीक है, मीन इट लुक्स ब्राइट, राइट? एक कनेक्शन बनता है जब हम किसी को देखते हैं ना, एक कनेक्शन बन जाता है, दैट्स द होल पॉइंट। सो आज की डेट में हम छोटा एक फोटो भी डाल सकते हो। So aiming to reduce global warming through sustainable energy production and consumption and reducing the risk of human extinction by making life multiplanetary and setting up a human colony on Mars. So this is his objective right now. अभी ये इसी चीज पर वर्क कर रहे हैं। I'm sure आप लोगों ने भी कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, right? Okay. अभी थोड़ा नीचे चलते हैं कि और उन्होंने क्या लिखा अपने बारे में। Okay. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में तो नहीं दिखाया था ना? नो सर। नहीं वही, अच्छा मुझे लगा कि No, अच्छा, sir. हाँ ठीक है। तो ये वर्क एक्सपीरियंस देखो इनका, जो सबसे जरूरी चीज इनके लिए वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस देखो, चेयरमैन, सीईओ, और थोड़ा सा ना डिफाइन भी कर दिया नीचे, अकम्प्लिशमेंट्स लिखकर डिफाइन करा। तो ऑफ कोर्स हम इतना डिटेल नहीं लिखेंगे, 2-2 लाइन इंटर्नशिप्स के बारे में लिख सकते हैं। कहाँ का आपने इंटर्नशिप करी, नहीं करी तो करना शुरू करो। 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन की इंटर्नशिप प्लीज करो, जरूरी है, आप सीखोगे। यू लर्न अ लॉट।
तो इनका तो चलो बहुत वगैरह है। अब थोड़ा सा और अगर हम नीचे जाएं तो इन्होंने अपनी एजुकेशन भी लिखा है यहाँ पे, बैचलर्स कहाँ से करी, इकोनॉमिक्स में भी करी है, फिजिक्स में भी करी, बहुत पढ़ लिया इन्होंने, राइट। उसके बाद इन्होंने एक ही पेज में 2 पार्ट कर लिया है, जिससे कि एक बार में सारी चीजें नजर आ जाए। कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से, इफ यू कैन सी गाइस, इन्होंने अपने स्किल्स और कॉम्पिटेंस को कितने अच्छे तरीके से वो लिखा है। डू सी दैट? थिंकिंग थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उसके लिए उन्होंने फुल मार्क्स दे दिया। माइक्रो मैनेजिंग के लिए इन्होंने थोड़ा सा अपने आप को कम नंबर दिया। गोल ओरिएंटेड में फुल मार्क्स दिया है। सो एक तरह से डायग्राम के थ्रू हैज एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज डिफरेंट डिग्री ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी। कितनी डिग्री? लीडरशिप में ऑलमोस्ट ये 99% है, अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट। रेजिलियंस मतलब होता है नेवर गिव अप, उसमें 100% है, हार नहीं मानते, लगे रहते, ऐसा कुछ। सो दैट्स हाउ इट इज। सो सी, दैट्स वेयर यू नीड टू शो के। अभी देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा तरीका है मुझे लगता है अपने आप को पोर्ट्रे करने का। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ऐसे ही करो, मैं बोल रहा हूँ कि आप दूसरों की अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके खुद में चेंजेस लाके, या फिर कुछ चीजें हम उनसे सीख सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अभी और देखे क्या लिखा है इन्होंने। अब देखो इन्होंने अचीवमेंट वगैरह में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है। अचीवमेंट्स और सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी है, और लैंग्वेज जो इनको पता है, और इंटरेस्ट, लास्ट में इन्होंने इंटरेस्ट लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट पर्सन मेरिसा मेयर। सो शी इज अ बिजनेस वुमेन है, और इन्होंने अपने बारे में फिलॉसफी देखो क्या लिखी इन्होंने। व्हाट इज द फिलॉसफी? इफ यू डोंट हैव एनी शैडोज यू आर नॉट स्टैंडिंग इन द लाइट। इंटरेस्टिंग है या नहीं? है सर। अब इसका ये मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इसका मतलब आपने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। कमी तो होगी सब जगह। अगर आप कभी फेल नहीं हुए तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। भाई अगर हम फेल ही नहीं हो जिंदगी में तो इसका मतलब भाई मैंने कोई रिस्क ही नहीं लिया, एंड यू नो आई एम नॉट गोइंग। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है इनकी कि इफ यू डोंट हैव एनी शैडोज यू आर नॉट स्टैंडिंग इन लाइट। अगर हम फेल नहीं होंगे जिंदगी में, गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? तो कितना अच्छा लिखा इन्होंने। और फिर उन्होंने अपनी, देखो वही बात वही है, इन्होंने भी मोर और लेस अपनी एक्सपीरियंस पहले लिखा है। याहू में थी ये पहले, गूगल में, फिर यू नो, और फिर उन्होंने अपने एक दिन को डिफाइन करा। यहाँ पर अगर देख पा रहे हो एक डायग्राम से एक दिन को डिफाइन किया है कि मैं दिन भर में क्या क्या टाइम कितना चीज करती हूँ। ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, एक तरह से ग्राफिकल तरीके से शी हैज रिप्रेजेंटेड। और फिर उन्होंने आगे जाकर अपने स्ट्रेंथ के लिए उन्होंने क्या लिखा है? हार्ड वर्किंग, ये सब लिखा है। और एक और इन्होंने अपनी क्वालिटीज को बड़े अच्छे से लिखा है, आई एम मोस्ट प्राउड ऑफ। ये जो मोस्ट प्राउड ऑफ है इसका मतलब अचीवमेंट, कि व्हाट हैव यू अचीव्ड, आप किस चीज के लिए आपको अच्छा लगता है। सो ऐसी कुछ चीजें हम उसमें पुट करेंगे। दैट्स योर अचीव, ये अचीवमेंट है आपकी। और कुछ भी है अचीवमेंट में इन्होंने लिखा है कि भाई आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू नो कंपनी ग्रो, टू टेक अ सिंगिंग शिप एंड ट्राई टू मेक इट फ्लोट। विच मीन्स ऐसी कोई कंपनी जो डूब रही है या अच्छी हालत में नहीं है, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको यू नो आई हेल्प इट ग्रो एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, द करेज आई हैड। मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनी में काम करा है जो डूब रही थी और उसको उठाया है, ऐसा बोल रही है। तो ये एक अच्छी क्वालिटी बता रही है अपने बारे में, एंड शी इज प्राउड ऑफ इट। स्ट्रेंथ्स और फिर लैंग्वेज जो पता है इनको, एजुकेशन उन्होंने बाद में लिखी। तो अलग अलग तरीकों से अपने आप को हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब मैं आपको नॉर्मल, ये तो चलो बड़े लोग हो गए, अभी थोड़े नॉर्मल लोगों के दिखाता हूँ आपको। नॉर्मल से सीधे साधे लोग जो भी बोलो। स्क्रीन वैसे शेयर किया मैंने, आप ये देख पा रहे हो? अभी दूसरा सीवी है यहाँ पर, कैन यू सी दिस? यस सर। यस सर। अब इसके बारे में देखो, इसने ऊपर अपना नाम लिखा है और थोड़ा सा छोटा एड्रेस लिखा है। फिर एजुकेशन पे सीधा द पर्सन हैज कम टू द एजुकेशन, तो एजुकेशन पे आ गया है। और वहां पर ये एक सेकंड, हाँ, तो ही कम टू एजुकेशन, उसने एजुकेशन में लिखा है BA LLB, तो भाई ये तो लॉयर है। उसने एक टेबल के थ्रू ग्रेजुएशन का सारा लिख दिया है। एंड देन इज रिटन अबाउट हिज एकेडमिक डिस्टिंक्शन।
फिर इन्होंने अपनी बार काउंसिल के बारे में लिखा है। प्रोफेशनल में इन्होंने इतने सारे इंटर्नशिप्स किए हैं, इंटर्नशिप्स इनफैक्ट सॉरी जॉब है, जॉब यहाँ जॉब है, यहाँ जॉब है, और आगे भी है। तो इनका एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने सब जगह एक्सपीरियंस में 2-2 लाइन लिखी। और ये देखो ये कैसा पर्सन है, इसने इतने सारे इंटर्नशिप कर लिया, भाई नॉर्मल नहीं है, ऐसा लग रहा है ना? इतना इंटर्नशिप कोई कैसे कर सकता है बताओ तुम? क्यों किया वैसे इतने इंटर्नशिप? कोई बता सकता है मुझे? इसका कुछ अंदाजा लगा सकते हो भाई, ऐसा क्या है? Why has this person more experience? ठीक है, और सर उन्हें देखा जाए तो हर फील्ड में इंटर्नशिप की है, उनके ट्रेड लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल लॉ सब में, हाँ तो वो सबका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं सब चीज। सर और देख रहे हो नॉलेज छोटे छोटे इंटर्नशिप, ऐसा नहीं कि 2-2 महीने का है, 1 महीने का है, 15 दिन का है ना? Yes, sir. And by working at different companies, he must have gained something like एब्सोल्युटली। skills. और दूसरी बात ये है कि इस पर्सन को 5 साल मिले थे ना भाई, लीगल लॉ तो 5 साल का कोर्स है, इसीलिए इतने सारे इंटर्नशिप करें। तुम मत करना इतना, राइट? और कोई डरना भी मत इससे कि भाई ये तो इतना खतरनाक इंसान है, नॉर्मल है। लॉ एक बहुत प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, इसका मतलब सीखते हो डिस्कस करके, इसीलिए इंटर्नशिप ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है। यू शुड नॉट कॉपी दिस कि नहीं मैं भी इतनी सारी इंटर्नशिप करूंगा, भाई जरूरत नहीं है, नहीं कर पाओगे। कॉलेज कब जाओगे? फिर कॉलेज में पढ़ोगे नहीं क्या? प्लीज अंडरस्टैंड, अपनी यूनिकनेस बरकरार रखो, दूसरों को हम कॉपी नहीं करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी योरसेल्फ। हाँ, इंस्पिरेशन लो, अच्छा इसने इतने सारे कर लिए, मैं 3 साल में चलो 3 कर लूंगा इंटर्नशिप, कोई दिक्कत नहीं, कर लो ना 3, चलो 2 ही कर लो, कोई बात नहीं, एक तो सभी करते हैं, राइट? ऐसा कुछ कर लेंगे। ओके, अब फिर इसने पब्लिकेशन में भी देखो बहुत सारे पब्लिकेशंस करे हैं और कॉन्फ्रेंसेस। तो अब एक लॉयर था ये, इसका ये है, चलो ठीक है, अभी दूसरे किसी का देखते हैं। अब ये पर्सन है, इसने भी शुरुआत में अपनी एकेडमिक्स के बारे में लिखा है, सो इज रिटन अबाउट हिज एकेडमिक्स। अब मुझे बता सकते हो कि इसकी 10th और 12th में नंबर कम क्यों आए भाई इस अच्छे इंसान की? कोई बता सकता है? थोड़ा कम है, 89, मतलब बुरा नहीं है, बट नॉर्मली जिसको 9 आ सकता है 10 में, बीटेक में, आईटी दिल्ली का स्टूडेंट है, उसके 10-12th में 90 से कम रह गया तो थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है, नहीं? सर उसने कोचिंग की होगी आईआईटी में जाने के लिए। सही बात है, सही बात है। इसका मतलब प्रोबेबली उसने 8-9 से ही लगता है ज्वाइन कर लिया होगा, एंट्रेंस वगैरह टफ होता है इंजीनियरिंग का, तो लग गया उसमें, और उस वजह से। बिल्कुल सही तुमने अंदाजा लगाया, दैट्स द पॉइंट। तो उसका टारगेट वही था, देखो अपने गोल ओरिएंटेड था, मुझे आईआईटी क्रैक करना है, और ये इंडिया के टॉप आईआईटी में गया, ये आईआईटी दिल्ली, समझ रहे हो बात? फिर इसने क्या किया, देखो स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, टॉप स्टूडेंट अमंग 4, ऐसा, यानी कि शुरुआत इसने एजुकेशन से कर ली, स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, कि मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था, डिपार्टमेंट मेरा रैंक 1 है। देखो हम लोग सब लोग फर्स्ट रैंक नहीं हो सकते, टॉप 10 टॉप 20 लिखना भी कोई बुरी बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम। इंटर्नशिप देखो इसने अच्छे से करा हुआ है 3-4 जगहों पर, लेकिन प्लीज याद रखो इंटर्नशिप को हम इतनी ज्यादा इलैबोरेट तरीके से नहीं लिखेंगे, इसने कुछ ज्यादा ही लिख दिया, कम करो, 2-2 पॉइंट लिखेंगे काफी। आई होप यू गेट द पॉइंट। प्रोजेक्ट्स देखो इसने करे हैं 3, है ना, और उसको डिफाइन करा इसने। उसके बाद देखो टेक्निकल स्किल्स भी है इसके साथ, इसके पास। अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर में देखो म्यूजिक में भी था ये, स्पोर्ट्स में भी था, और बाकी और भी चीजों में पार्टिसिपेट करी, तो थोड़ा वर्सेटाइल लग रहा है ये स्टूडेंट। सो म्यूजिक भी, स्पोर्ट्स, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताता है कि आप कॉर्पोरेट में कहां पर जॉब कर पाओगे, या अभी तक आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ चीज अपनी कॉलेज में हैंडल करा है क्या, ऐसी चीजों का पता चलता है। सो आई वुड लाइक मोस्ट ऑफ यू कि आप प्लीज कुछ ना कुछ पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो टीम प्लेयर ही क्यों ना हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करना जरूरी है। ये एक्सपीरियंसेस हमें बहुत काम आते हैं आगे जाकर जॉब में। सो प्लीज इसमें कम से कम 1-2 चीजें होनी चाहिए आप सबके पास, प्लीज ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? फिर आप देखोगे आपको कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। सो आई होप यू गेट सम आइडियाज। कुछ आइडिया मिला आपको इन रिज्यूमे को देखकर? यस सर। तो कुछ पॉइंट्स आई एम श्योर आपने नोट किया होगा। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैं और नीचे आता हूं फिर, कि भाई मैं, वो तो एक आईटी था, एक लॉयर था, ये नॉर्मल पर्सन है, इसने
लेविता स्ट्राइक किया। इन्होंने टेबल में देखो अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है इन्होंने पहले लाइन में, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन योर डेस्क टू मूव फॉरवर्ड इन माय करियर इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड वर्क हार्ड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख दिया। फिर उन्होंने टेबल में देखो, अब देख पा रहे हो टेबल में इन्होंने 10th 12th वगैरह लिखा है, विजिबल है? यस सर। तो 10th 12th में टेबल के फॉर्म में अपने ईयर परसेंटेज वगैरह लिख दिया है। देखो अगर किसी का परसेंटेज कम है ना, जैसे इनका परसेंटेज कम है, देख पा रहे हो कम है, पता है दिस पर्सन शुड नॉट हैव मेंशन्ड दिस, नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि रिज्यूमे में तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड है। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो डाउट, लेकिन जो चीज मुझे थोड़ा सा नीचे ले जाए वो मैं खुद ही क्यों बताऊं, वो पूछेंगे तो बता दूंगा मैं। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, राइट? तो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, बट देन अवॉइड कर सकते थे हम इसको, यहाँ पे इस चीज को, परसेंटेज। इन्होंने अपने वर्क एक्स के बारे में लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ब्रीफ में लिख दिया है, ठीक है, ज्यादा इलैबोरेट नहीं है, गुड। देन शी इज रिटन अबाउट टेक्निकल स्किल्स, एसक्यूएल पता है या विजुअल बेसिक पता है, एमएस ऑफिस पता है, ऐसा कुछ। एक्स्ट्रा करिकुलर की भी लिस्ट डाल दी, बहुत अचीवमेंट भी डाला है कुछ। ऑल इंडिया एफिलिएटेड सिंगर है भाई, ये तो बढ़िया, गुड। और लास्ट में सबसे कम जरूरी चीज, पर्सनल डिटेल सबसे कम है, वो लास्ट में। आई होप यू गेट द पॉइंट। सबसे कम जरूरी चीज है ये सब, क्योंकि हम लास्ट में लिख सकते हैं, अगर जगह है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे। आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया कि हम रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, और बनाने से पहले हमें उस रिज्यूमे पे वर्क करना पड़े, दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, एक दो लास्ट पॉइंट्स एंड देन आपके दिमाग में जो चीजें आप पूछ सकते हो, इफ इन केस यू हैव एनीथिंग टू आस्क। ठीक है, सो आई एक्सप्लेन यू अबाउट भाई रिज्यूमे और सीवी कैसे बायोडेटा से अलग है, ये बताया मैंने आपको। आई टोल्ड यू कि एकदम पंची होना चाहिए, एक दो पेज से ज्यादा मत लिखना, और उसके लिए ग्रामर और वोकैबुलरी यू शुड चेक, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखा आपने, कोई किसी का कोई ऑर्डर है, किसी का कोई, बट देन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए मेरे रिज्यूमे में, राइट? और कुछ भी करने से पहले हमें अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मेरे पास व्हाट डू आई हैव टू ऑफर, भाई व्हाट डू आई हैव टू ऑफर टू एनी कंपनी और एनी कॉलेज आई विश टू जॉइन, व्हाट एम आई सेलिंग, सीधी क्रूड लैंग्वेज में, व्हाट एम आई सेलिंग, राइट? इट्स लाइक दैट, सीधी बात। फिर अपना लिस्ट डाउन करो, क्या स्किल्स है, क्या लैंग्वेजेस पता है तुमको, क्या टेक्निकल स्किल्स, ये लिस्ट लिखो, रफ में लिखो, रफ में क्या अच्छी बातें तुम्हारे अंदर, स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट लिखो रफ में। टीचर से बातें करो कि सर मैम आपने क्या देख, कोई पॉजिटिव है मेरे अंदर बताइए प्लीज, या हैव यू सीन एनी नेगेटिव, प्लीज टेल मी, लेट मी नो दैट। पूछो लोगों से, दोस्तों से, लिस्ट डाउन करो, ठीक है? और स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है 12 के फॉन्ट साइज में हम अपना रिज्यूमे लिखेंगे, टाइम्स न्यू रोमन या एरियल का फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे, कॉमिक सेंस नहीं डालेंगे और कोई भी फैंसी कलर वगैरह नहीं डालेंगे रिज्यूमे में, इनफॉर्मल हो जाएगा, विल नॉट मेक इट इनफॉर्मल। टेबल बना सकते, ग्राफ बना सकते, राइट? और कंसिस्टेंट रखेंगे, ऐसा नहीं कि पहली लाइन किसी और फॉर्मेट में, दूसरी किसी और में, चौथी कोई और में, इतना ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, प्लीज अंडरस्टैंड, वी नीड टू बी फॉर्मल। फॉर्मल है, हम फॉर्मल लिखेंगे, हम यू नो बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ऑल दो स्टफ, विल डू दोस थिंग्स, ये चीजें करेंगे। और जब हम एजुकेशन के बारे में लिखेंगे तो जैसे मैंने कहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो भाई एमकॉम के बारे में पहले लिखोगे, फिर बीकॉम के बारे में, फिर 12th के बारे में, फिर 10th के बारे में। सो नॉर्मली हम इस ऑर्डर में चलेंगे, दैट शुड बी गुड इनफ। एक करियर ऑब्जेक्टिव अगर लिख पाओ 2 लाइन का शुरू में तो अच्छा रहेगा, राइट? कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी, क्या अच्छी चीज है आपके अंदर, वो शुरू में लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ प्रोजेक्ट वगैरह करे हैं, कुछ रिसर्च पेपर या कुछ भी करा है तो उसको भी लिखो, नहीं किया है तो डू सम प्रोजेक्ट्स ऑन यू सम सब्जेक्ट्स, जो भी है, बहुत बार हमारे कोर्स में होता है, राइट? और एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर्स में पार्टिसिपेट वगैरह करो। लास्ट 1 ईयर में तुम्हें कम मौका मिला, बट आई थिंक हम कर सकते हैं, राइट? अचीवमेंट्स वगैरह मैंने तुम्हें दिखा। So mostly these are the things. So the last point probably I'd like to tell you is that
they are going to question you from whatever you write. You not get away by just writing anything you want. ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिख दी, इंटरव्यू का कॉल तो आ गया, बट बाद में जब उन्होंने चेक किया तो पता चला आधी बातें तो गलत ही थी, कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया हुआ था, और आई डोंट हैव दोज क्वालिटीज, मैं फंस जाऊंगा, बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। तो प्लीज एथिक्स और ऑनेस्टी का साथ नहीं छोड़ना है, और जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से लिखना है। मेरे अंदर जो है वो लिखूंगा, जो क्वालिटीज नहीं है आई वर्क ऑन दैट, मैं उस पर वर्क करूंगा। प्रॉब्ली दीज थिंग्स आई शुड बी डूइंग। हाँ, क्रिएटिविटी में थोड़ा उठा सकता हूँ इधर से, किसी का अगर कुछ अच्छा लगा मैं उनका तरीका उठा सकता हूँ, बट चीजें वो लिखूंगा जो मेरे अंदर है। प्लीज, आई होप यू गेट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो वो चीज आप प्लीज ध्यान रखना, राइट? So probably this is what I wanted to talk to you regarding how to build a good resume, how to present yourself in the best possible manner, thinking of it that I am a product and how do I sell a product. So for that my wrapper, जो product का wrapper है वो अच्छा होना चाहिए। भाई चॉकलेट खरीदने जाओ मार्केट में तो उस चॉकलेट का जो कवर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर कवर अच्छा नहीं है तो शायद क्या पता मेरा ध्यान वहां नहीं जाए। बट माइंड यू ऑल ऑफ यू, ऐसा भी ना हो कि कवर बहुत अच्छा है और अंदर चॉकलेट का स्वाद अच्छा ना मिले। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैंने लिखा अच्छा है, कुछ कवर बढ़िया एकदम बिल्कुल चमकीला कवर डाला है चॉकलेट के ऊपर रैपर, तो अंदर चॉकलेट खाने में भी मजा आना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। सो विच मीन्स हमें अपने आप पे थोड़ा वर्क करना चाहिए, ऑल ऑफ अस, राइट? सो एकेडमिकली आप रेगुलरली 2-3 घंटे भी पढ़ते हो अगर, बहुत ज्यादा है। उसके अलावा 2-3 घंटे आप बाकी चीजें करो, एक्स्ट्रा करिकुलर ये सब है। बाकी 1-2 घंटे आप मूवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट देन प्लीज बैलेंस करो चीजों को, सिर्फ एक ही चीज मत करो। ये नहीं दिन भर खाली पढ़े जा रहे हो, नहीं चलेगा। दिन भर खाली नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हो, नहीं चलेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत सिंपल सी बात। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने वहां गया बढ़िया कपड़े उपड़े टाई वाई लगाकर गया इंटरव्यू में, बट कुछ पूछ रहे तो मैं कुछ बता ही नहीं पा रहा। अरे क्या फायदा वो टाई लगाने का और अच्छा कपड़ा पहनने का। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एट द एंड ऑफ इट यू आर मोर इंपॉर्टेंट। डिग्री वगैरह तो पीछे है, तुम आगे। सो एट द एंड ऑफ इट हमारे करियर के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स द बेसिक थॉट I'd like to put forth over here, all of you. So with this note, I'd like to end the session. If in case anybody has any question, anything, I'm here to answer the questions. अगर आप लोगों के It is a very yes, sir. Thank you so much, sir. It is a very significant session. We learned a lot. The students have some queries and confusion in their minds going on. I request them to ask one by one. प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप सर से, प्लीज। सर वी नीड टू, सर हाँ sir, we need to attach our certificates with the resume or not? No. Initially you don't need to attach your certificates, but when they ask for it, then you need to send it to them. lot of times क्या होता है, किसी कॉलेज में अगर आप मान लो अप्लाई करो, MBA करना चाहते हो, तो वो एक लिस्ट बताए थे कि आपको एक रिज्यूमे और वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तब अपलोड करेंगे। अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो विल नॉट अपलोड एनी सर्टिफिकेट्स। तो जो वो मांगेंगे हम वो करेंगे। फिलहाल इफ समबडी आस्क्स फॉर रिज्यूमे जॉब के लिए, तो मैं एक कवर लेटर और एक रिज्यूमे वो दो कर दूंगा। अगर आप मेल कर रहे हो, इफ यू आर मेलिंग टू देम, तो कैसे करोगे आप? मेल बॉक्स जो खुलेगा उसी पे कवर लेटर लिख देना कि डियर सर, I am this and I am interested in this kind of profile which your company is offering. I have already done some internships of this kind. ऐसा करके लिख देना और थैंक्स करके रिगार्ड्स कर देना नीचे। उसमें फिर अपना रिज्यूमे अटैच कर देना। इसका मतलब कवर लेटर हो जाएगा। तुम्हारा जो बॉक्स में तुमने लिखा है वो कवर लेटर हो गया और जो अटैच किया वो रिज्यूमे हो गया। अगर हार्ड कॉपी होगा तो आप उसको प्रिंट करा लेना, कवर लेटर को भी और रिज्यूमे को। रिज्यूमे के ऊपर कवर लेटर डाल देना और उसको स्टेपल कर देना। कवर लेटर इज अनदर शीट ऑफ पेपर, इट शुड बी एट द बिगिनिंग, शुरू में होना चाहिए। पहले कवर लेटर, उसके बाद रिज्यूमे हो। पहले पेज में कवर लेटर, दूसरे पेज में रिज्यूमे। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ प्लीज बताओ। सर जैसे अगर हम किसी एनजीओ वगैरह में वर्क करते हैं वीकेंड्स पे या वैसे भी, और वो सर्टिफिकेट्स नहीं दे रहे, तो फिर हमें फोटोग्राफ्स वगैरह अटैच करनी होती हैं।
देखो फिलहाल जब तुम अप्लाई करो कहीं पर रिज्यूमे में सिर्फ लिख दो उसके बारे में कि आप किस एनजीओ में थे और क्या आपने काम किया। जब आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो उस समय अपने फोल्डर के अंदर तुम कुछ प्रूफ ले जाना, कोई फोटोग्राफ या ऐसी कोई चीज, वो प्रूफ ले जा सकते हो जब इंटरव्यू पे बुलाएंगे उस समय। रिज्यूमे में तुम्हें कुछ अटैच करने की जरूरत नहीं, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं हमारे कॉलेज वगैरह में जिसमें हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलते, बहुत सारे ऐसे इवेंट, तो वो सब मैं लिख दूंगा रिज्यूमे में, लिखूंगा मैं, राइट? और जब वो पूछेंगे तो उनको बताऊंगा मैंने क्या क्या किया है, और अगर कुछ प्रूफ है तो लिखू रख दूंगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको बोल सकते हैं कि प्रूफ नहीं है सर लेकिन मैंने ये सब किया है। और फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन पूछ के वो ऑथेंटिकेट करेंगे कि क्या सचमुच तुमने पार्टिसिपेट किया था। वो उनका तरीका होता है, मतलब हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो हम लोग उसको चेक करते हैं कि सच है या झूठ, पता चल जाता है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन? किसी का कोई और क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं सर से। यस सर, प्लीज यदि प्लीज। किसी चीज आई हैव बैड थिंकिंग है या किसी चीज में हम असफल है तो हम उन्हें ये भी बताएंगे कि हाँ हमने उसे कैसे अच्छा बनाया अपने आप को। हाँ, अगर मान लो कोई कमजोरी है हमारे अंदर, कोई वीकनेस है, कोई ऐसी चीज है जहां हम अच्छा नहीं कर पाए, देखो या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, सीधी बात तो ये, या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे, ये हारने वाली चीज कुछ होती नहीं। तो अगर मान लो कभी मेरे लाइफ में कुछ फेलियर हुआ है, कहीं मैं कुछ अचीव नहीं कर पाया, तो मैं उससे सीख गया कि भाई अच्छा वो मैच में हार गया तो मैं क्या सीखा। तो कभी कोई मुझसे पूछे कि आपकी फेलियर्स बताइए तो मैं बता दूंगा हाँ भाई उस समय ऐसा हो गया था, तो ये थोड़ी गलत हो गया था, लेकिन मैं उनसे सीखा, उस चीजों से मैंने सीख लिया कुछ। तो अपनी जो भी गलत हुआ, अगर मान लो कोई फेलियर हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई वीकनेस है, मान लो मैं इंपेशेंट हो गया, या मान लो मैंने चीजों को डिले कर दिया, लेट हो गया सबमिट करने में कुछ, तो हम बता सकते हैं कि ऐसा मेरे अंदर कुछ नेगेटिव चीजें हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर वीकनेस है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो उनको बता सकते हैं ये चीज, कोई प्रॉब्लम। बिकॉज देखो हम लोग सब ह्यूमन बींग्स, इंसान है भाई, हमारे अंदर कमजोरी नहीं होगी तो भगवान बन जाएंगे हम, सीधी बात तो ये, राइट? इसीलिए अपनी कमजोरी को अगर वो पूछे तो उनको बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे, लेकिन थोड़ा ये भी बताएंगे कि सर मैंने इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए कुछ काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर ये कमजोरी मेरे साथ रहेगी ज्यादा दिन तक तो शायद मुझे दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, तो इसलिए मैं इस पर वर्क करना शुरू कर दिया है मैंने। मुझे अगर गुस्सा आता है तो मैं मेडिटेट करना शुरू कर दिया मैंने, या मैं चीजों को अगर डिले करता था तो मैंने एक डायरी पॉकेट में रखनी शुरू कर दी है, और उस डायरी में लिखता हूं मैं कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, तो ऐसा कुछ बोलेंगे। सर हाँ आयुष, सर आपने कहा था कि अगर मार्क्स किसी सब्जेक्ट मतलब किसी रिजल्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसको अवॉइड करना है लिखना। तो अगर मान ली सर, मान ली कि अगर मेरे ग्रेजुएशन में अगर अच्छे नहीं आते हैं तो क्या उसको भी अवॉइड कर दूं? हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ना अपना लिख देना कि परस्यूइंग बीकॉम या फिर डिड बीकॉम फ्रॉम दिस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बस उतना ही लिखो, परसेंटेज लिखने की क्या जरूरत, ठीक है सर। और अगर मान लो कुछ 65 है, 61 है, तो फर्स्ट डिवीजन लिख दो, फर्स्ट डिवीजन है, क्या दिक्कत है, राइट? ठीक। पुराने जमाने में फर्स्ट डिवीजन बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल 90% कोई पूछता नहीं, बताओ ये हालत हो गई है, सो क्या कर सकते हैं। यस सर, ठीक है सर। Is there anyone else? Okay, sir. I think we have done with the queries. थैंक यू अमित जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही सरल तरीके से बहुत गहन चीज़ों को यू हैव पुट ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी डीपेस्ट मैनर। और इवन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं स्टूडेंट्स, मैं भी सीख रहा था आपके साथ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं नहीं सीख रहा था, ये प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, ये प्रोग्राम मैं सुन भी रहा हूँ। मैंने हर बार आपको क्लास में ये कहा है, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल अपडेटिंग माई सेल्फ, आई एम स्टिल गेटिंग न्यू अपडेट्स। आज सुबह बैठ के मैं 2 घंटे गूगल मीट का डोमेन मैंने परचेज किया आप लोगों के लिए अपनी तरफ से, ताकि मैं 250 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करा सकूं। पूरी रात बैठ के उसको सर्च किया, आज भी मैं सीख रहा हूँ, आज भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। और आपने जिस तरीके से बताया अमित जी, यूएसपी के बारे में जो बात किया, दैट इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। देखिए आप सबको पता है अरब कंट्री का एक यूएसपी है ऑयल, जर्मनी का एक यूएसपी है पंक्चुअलिटी, जापान का यूएसपी है टेक्नोलॉजी, और इंडिया का यूएसपी है स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी।
प्लीज अध्यात्म को आप धर्म से मत जोड़िएगा, ये धर्म से परे की चीज है। आप घड़ी कितनी महंगी पहनते हैं महत्व उसका नहीं है, आप समय का सदुपयोग कैसे करते हैं ये स्पिरिचुअलिटी है, ये टाइम मैनेजमेंट है। आपका घर 10 कमरों का है कि एक कमरों का, इंपॉर्टेंस इसका नहीं है। आप एक घर में कितना मिलके रहते हैं, कितने भाईचारे के साथ रहते हैं, कितना प्रेम है आप लोगों का, कितना पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जो सर ने यूएसपी की बात की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके अंदर क्या खास बात है, पहचानिए अपने पोटेंशियल को। हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, उसको देखिए, उसको खाद और पानी दीजिए ताकि वो यूएसपी और आपका ग्रो करे, आपकी पर्सनालिटी और ग्रो करे। हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ नया होता है। मैं एक चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जैसे अभी परसेंटेज की बात हुई, अगेन आई विल से वन थिंग। देखिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। मैंने शुरू की क्लास में भी कहा था, एजुकेशन का मतलब है व्हाट नॉलेज इज स्टिल परसिस्ट इन योर माइंड, दैट इज योर रियल नॉलेज। Amit sir, I have met so many students in my class and they told me, sir, I got 95%. And when I start to ask them, what is state? What is mean by republic? Nobody knows. Everybody was zero. तो बेसिक्स भी हमें बहुत अच्छा रखना है। परसेंटेज कितना आया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। When I was in my 10th class, I'm sharing one thing very fairly in front of you. My percentage was not so good. And my cousin brother was told me कि गधा बोझा खूब उठाता है लेकिन आजीवन गधा ही रहता है। And tell one thing, ये गधा आपके सामने घोड़ा बन के बैठा है आज। I'm working as a senior assistant professor and by the month of July I will become a professor in Delhi University. So मेहनत कीजिए, सीखते रहिए, लगातार सीखते रहिए। और सर आपने बहुत अच्छी चीजें बताई कि we all should keep some philosophy of life. We can use that as a tagline. Or difference between CV and resume, or you may say the punchline or the USP. ये सारी चीजें बहुत जरूरी थी और सही मायने में यकीन मानिए मैं भी सीख रहा था आपके साथ। मैं भी सीख रहा था, पर फिर वही बात आ जाती है कि आप रिज्यूम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। When I am preparing my resume for an academic, तो मेरे कितने आर्टिकल पब्लिश है, मैंने कहाँ पेपर प्रेजेंट किया है, मेरा कितना बुक राइटिंग है, मेरा कितना चैप्टर्स है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या क्या नया किया and what innovation I'm still doing in education. I'm mentioning that all things. Just Amit ji, 2 months before I got my promotion, and second promotion is going to be held within 10 days. And my third promotion, and I will get my third promotion as an associate professor within a month. And most of the time, most of the professors were asked, and उन्होंने वो चीजें मुझसे पूछी जो मेरे साथ में बैठे हुए मेरे कलीग्स को नहीं पता थी। सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लगातार अपने आप को अपडेट कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कीजिए। वन मोर थिंग, एज अमित सर टेल अस, वी शुड वर्क, वी शुड कंबाइन द हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। कोशिश कीजिएगा। रिक्शे वाला सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है लेकिन बेचारा बहुत मुश्किल से अपने परिवार का गुजर बसर कर पाता है। तो हार्ड वर्क भी कीजिएगा पर स्मार्ट वर्क भी कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो किसी एक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी और बहुत सारे विषयों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। तो अमित जी ने आपको रिज्यूमे के बारे में भी बताया, हाउ टू क्रैक कैट, उसके बारे में भी ये नॉलेज बहुत रखते हैं। किस तरीके से कंपनीज में काम किया जाता है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स का कॉर्पोरेट कल्चर है उसके बारे में इनको बहुत अच्छा नॉलेज है। और ये हमारे बीच एज ए एकेडमिशियन भी बैठे हैं। He is well updated, that's why he is here and he is addressing all of us. Thank you so much, Amit ji, once again. Thanks a lot on behalf of Shamlan College Evening, and my personal thanks and regards to you to be here with us. Thank you so much. Thanks to all my students because we are here because of you. हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए हैं। सरकार ने मुझे अगर नियुक्ति की है तो आपके लिए किया है। Thank you so much and try to learn and update yourself and be sincere. Try to identify your weakness and try to overcome from that. अपनी कमजोरियों से उभरने की जरूर कोशिश कीजिएगा प्लीज, ठीक है? क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है? हमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, हमें हमारा कंपटीशन हमारे खुद से होना चाहिए। जो अभय, जो मोहम्मद शाह, जो गौतम, जो केशव, प्रियंका 3 साल पहले थे, आज आपको उससे बेहतर बनना है और जीवन में लगातार बेहतर बनते चले जाना है। खुद के लिए खुद से कंपटीशन करना, खुद को हराना, ये वादा करो अपने से, ठीक है? और ये सारी चीजें जो सर ने आपको बताई रिज्यूम के बारे में, लास्ट टाइम सर ने आपको और भी कई सारी चीजें बताई और आने वाले कई सेशंस में भी हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे वो दोबारा आए। प्लीज इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा,
बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सीखते 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 अब यहाँ तक पहुंचा और आज भी सीख रहा हूँ, हमेशा सीखता रहूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you all of you. Best of luck. Thank you so much. Thank you, See you sir. again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. Bye-bye. Thank you, sir. Take care. Thank you, sir.